Hello everyone. Today we will discuss the topic carboxylic acid. Carboxylic acids. So first there is a nomenclature of carboxylic acid. We know very well that in case of carboxylic acid we use the word oic acid in suffix. So this has two carbon, so we can say this one is ethanoic acid. Ethanoic acid. This is the simple IUPAC nomenclature of carboxylic acid. Similarly, if suppose this one is there, it has only one carbon, so we can say it is methanoic acid. Methanoic acid. Similarly, this one is benzoic acid. Common name is benzoic acid. And this one is 1,2-dicarboxylic benzene. We can use the word benzene 1,2-dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid. Now preparation. Most of the reaction of carboxylic acid we have done, almost 70 to 80% reaction we have completed in the either in alkyl halide or alcohol ether or aldehyde or ketone. But again we are revising from aldehyde. Everyone know, if we take a mild oxidizing agent like PDC, again I am repeating PCC, तो किसी भी एल्डिहाइड को ये सेम नंबर ऑफ कार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, RCOOH. दिस इज सिंपल. वी गॉट द carboxylic acid from aldehyde. We can get from alcohol also. From alcohol, if we take the strong oxidizing agent RCH2OH in presence of strong oxidizing agent, for example K2Cr2O7, this alcohol directly convert into carboxylic acid. Next, from ketone, everyone know that I have discussed in the previous video Popov rule. Popov's rule. तो कोई भी कीटोन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में क्या हुआ, कीटोन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH2CH3. तो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल, एंड हियर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है, that will go with the smaller alkyl group. So this bond will break down from here, and we will get CH3COOH plus CH3CH2COOH. So in this way we can get carboxylic acid from ketone. Next, hydrolysis of acid chloride. This is also a simple reaction we have discussed. Suppose any acid chloride RCOCl, and we hydrolyze acid chloride in the presence of acid H2SO4, H positive, we will get the RCOOH plus HCl. So simple reaction there from the hydrolysis of acid chloride. The H positive and OH negative, this H positive will go to the Cl
and it will HCl and this OH negative, it will attack on the न्यूक्लियोफाइल. मैकेनिज्म आप देख सकते हैं. मैकेनिज्म simply R C double bond O Cl, and this will attack the first. What happen, because in the presence of acid, this lone pair of this oxygen attack on the H positive. When it will attack on the H positive, it will get the R C double bond O H positive, and now it will withdraw the electron very strongly, and it will create a nucleophilic site. Now OH from the water, it will attack the H, and this will go to the RCOH, and this one is the OHCl, or we can say this is positive. Now या हम इसको पॉजिटिव ना दिखा के OH negative. Now here this is the best leaving group, it will eliminate, and at the same time it will react with this H positive, and it will form the HCl and it form the RCOOH. Simple mechanism. Hydrolysis of acid amide. So ये भी एक सिंपल रिएक्शन होती है. एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है ये रिएक्शन? इफ सपोज हम किसी RCOOH को अगर NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, देन वी विल फर्स्ट प्रोडक्ट वी विल गेट RCOO NH4 पॉजिटिव. और अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं, देन वी विल गेट द RCONH2. और अगर RCOONH2 का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलेगा? RCOOH प्लस NH3. सो दिस इज़ द रिएक्शन. तो अगर एमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, अगर इस एमाइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव, तो हमें RCOOH प्लस NH3 we will get, and this is the base from this reaction. How this RCOOH we can get? There are other way also we can get this RCONH2, but this is the simple way. Next, hydrolysis of acid anhydride. Anhydride, C anhydride क्या होते हैं? These are the, suppose 2 RCOOH molecule is there, और उनको मैं RCOOH और उनसे एक वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर निकल जाए, तो वी विल गेट द RC डबल बॉन्ड O and RC double bond O, and this is oxygen, and they are called anhydride. Again here minus H2O, अगर इस anhydride का हम फिर प्लस H2O कर दें, then we will get the 2 molecule of carboxylic acid. So simple reaction of we can get the carboxylic acid from the hydrolysis of acid anhydride. Again next, from Grignard reagent we have discussed many reaction of Grignard reagent. Again, if suppose this is C double bond O CO2 and we react this CO2 in the presence of RMgX, so you know very well what you will get. R, this is C double bond O OMgX, और इसी स्टेप के अंदर अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O, then what we will get? RC double bond O OH plus MgX and OH. This is the simple way to get the carboxylic acid from Grignard reagent. Although if the excess of Grignard reagent is there, then again it will react on this carbonyl
group. Next one, Koch reaction. What happen in the Koch reaction? That is hydroformylation reaction. Suppose this is the CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम इसको रिएक्शन करते हैं CO प्लस H2O, देन व्हाट विल वी गेट, तो यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा और यहाँ नहीं सॉरी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे COOH ऐड हो जाएगा, तो दैट इज CH3CH COOH into single bond CH3. So this is called Koch reaction. So these are the 7 way we can get the carboxylic acid. Maybe other way are also there where we can get carboxylic acid, but these are the major, some common way to get the carboxylic acid. Now physical property of carboxylic acid. First we will discuss only 2 points that are very relevant. Boiling point of carboxylic acid is greater than aldehyde and ketone RCHO and RC double bond OR. So अगर सिमिलर मॉलिकुलर वेट, और ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज देर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because strong intermolecular hydrogen bonding, molecular H bonding in carboxylic group COOH. That's why their boiling point is more than aldehyde and ketone. Second point, melting point. In case of melting point, the carboxylic acid having even number of carbon atom, has more melting point from successive odd number of carbon atom. Because in even number of carbon atom, symmetry is present, greater symmetry is there compared to odd number. When symmetry is present, then they can easily closely packed. When they closely packed, that means their melting point would be higher. If there are no symmetry, they cannot be packed very closely, so their melting point will be less. So even number of carbon atom has the, for example, 4 has the more melting point for a carboxylic acid having 4 carbon atom has more melting point compared to a carboxylic acid having 5 carbon atom, but not 7 carbon atom. So this is only for successive, successive atom. Next this is all about the physical property of carboxylic acid. Now there are questions. Carboxylic acid contain carbonyl group, still nucleophilic addition reaction are not possible. Why? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, स्टिल इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक्स addition reaction are not possible like in aldehyde and ketone. So इसका रीज़न क्या होता है?
तो क्या होता है बच्चों, इन कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज ए रेजोनेंस इन आर सी डबल बॉन्ड O and this O. If suppose this oxygen withdraw the electron towards itself and it get the negative charge and it get the positive charge, so at the same time this oxygen, the lone pair of this oxygen involve in the resonance and they make the double bond with this carbon atom. That's why या हम इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, अगर RCO नेगेटिव है देन इट मेक द OH पॉजिटिव. सो देयर इज नो डर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई भी कमी नहीं होती है. दैट्स वाई इट इज़ सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन रिच, नॉट टू मच इलेक्ट्रॉन पुअर. तो यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको प्रॉपर न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं मिल पाती. दैट्स वाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज स्टिल दे हैव कार्बोनिल ग्रुप बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डज नॉट अकर. तो पॉइंट समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस के अंदर है. वीडियो को बार बार देख सकते हो इसको कि इसका रीज़न क्या होता है. जैसे ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाते हैं इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन गेट द पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसका जो लोन पेयर होता है ये यहाँ पे डोनेट करके यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है. दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डज नॉट अकर ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड. Second, carboxylic acid are stronger acid than alcohol. So obviously in carboxylic acid RCOOH, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करते हैं दे विल गेट द RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इन ऑन ऑक्सीजन एटम एंड इट इज इन रेजोनेंस स्टेबलाइज. तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है. दैट्स वाई ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे कंपेयर टू अल्कोहल. अब केस देखो अल्कोहल का, इफ सपोज RCH2OH और अगर एसिडिटी की बात करते हैं तो इट विल डोनेट द H पॉजिटिव एंड RCH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव and this O negative is destabilized by the alkyl group. Destabilized by the alkyl group. So that's why अगर ये destabilize होगा तो alcohol are poor acid compared to किसके बच्चों, carboxylic acid. One more question, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सर अगर हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड को और फिनोल को, तो सपोज करो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड दिस इज आई एम टेकिंग CH3 या कोई भी RCOOH, C डबल बॉन्ड OOH. तो फिनोल में क्या होगा बच्चों, देन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन R प्लस H. नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन इन रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस में जब जाएगा देन कार्बन एटम आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज. अगर बच्चों इसका रेजोनेंस हम दिखाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को पूरी रिंग पे रोटेट कराएंगे. रोटेट कैसे कराएंगे, हम ऐसे करा सकते हैं कि भाई ये सपोज करो O नेगेटिव, ये बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और सिमिलरली ये रोटेट करता रहेगा
तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कैरी कर रहा है बच्चों? कार्बन। एंड कार्बन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो वो इसको बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं करने का, तो ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट हैपन? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, ऑल्दो इट इज destabilizing this carboxylate ion but negative charge is only carried by the oxygen। और ये इसके साथ रेजोनेंस में होता है, इसको मैं रेड कलर के पेन से दिखा देता हूँ। इसके साथ रेजोनेंस में होता है बट नेगेटिव चार्ज इज कैरी बाय नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय ऑक्सीजन एटम। तो ये ऑक्सीजन एटम इसको कैरी करता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई फिनोल और ऑल्सो लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीप इन माइंड, ऐसा मत सोच लेना कि फिनोल है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, जैसे CH3COOH, और ये अगर डिसोसिएट होता है दैट CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अगर हम इसका Ka लिखते हैं बच्चों तो दैट इज CH3COO नेगेटिव, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय CH3COOH। तो जितना ज़्यादा H का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इसका होगा। एसीटेट आयन का, एसीटेट इन दोनों का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा K का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा H का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, उतना ज़्यादा K होगा। और K इजकल टू होता है और PK होता है माइनस log K, तो मीन्स PK इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि भाई PK का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो इस पर सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, CH2F C double bond O negative after donating the H positive ion, so this F ion will withdraw the electron and therefore this CH2 also withdraw this one and it will disperse the negative charge। और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब सपोज दिस इज CH2 और यहाँ पे मैं एक OCH3 ग्रुप लगा देता हूँ एंड देन इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। नाउ दिस शो द it will not OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं कोई दूसरा लेता हूँ, अच्छा सा लेता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ग्रुप लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर मेरे को बेंजीन रिंग वाला पार्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस कार्बन शुड बी द इन द रेजोनेंस। तो जैसे ले लेते हैं, चलो बच्चों फॉर एग्जांपल हम बेंजोइक एसिड को ले लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड के अंदर COOH और यहाँ पे OCH3 लग देते हैं, तो दिस शो इट्स प्लस आर इफेक्ट शो करने से यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटेंसीफाई हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटेंसीफाई हो गई तो क्या होगा बच्चों,
ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, इस पे इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट के लिए जगह नहीं छोड़ा मैंने, तो इधर कर देते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट में एक छोटा सा लाइन यू हैव टू रिमेंबर, ऑर्थो इफेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा ऑर्थो इफेक्ट को। देखो बच्चों, अगर कोई ऐसा ग्रुप है यहाँ पे, जैसे फिनोल नहीं, यहाँ पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, जैसे COOH SO3H, तो ये बल्कि ग्रुप है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द OH, हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो OCH3 इसकी बात नहीं कर रहे, मतलब छोटे ग्रुप की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द बल्कि ग्रुप। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी ग्रुप होता है, तो वो वाला एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंपेयर करते हैं कि भाई आपसे पूछा जाए कि COOH CH3 और COOH, और ये यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखता, चलो, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा एसिड है, तो A और B, तो आप बोल सकते हो सर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये कम एसिड होना चाहिए, पर ये ही ज़्यादा एसिड है। तो आप ऑर्थो इफेक्ट को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट। presence of electron withdrawing group, the presence of electron withdrawing group or electron donating group at ortho position, at ortho position always increase the acidity, always increase the acidity, आपकी एसिडिटी हमेशा इंक्रीज कर देता है इफ सपोज इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। अगर आपका ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप जैसे COOH हुआ या SO3H हुआ, और इनके केस में ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो ये वाले जो ऑर्थो वाला जो कंपाउंड होगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई COOH बेंजोइक एसिड 1,2-मिथाइल बेंजोइक एसिड, CH3, और अगर ये ऑर्थो पे है या मेटा पे है CH3, और ये आपका पैरा पे है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सॉरी, COOH लिखना था ना ऊपर। तो आपसे पूछ सकता है कि विच वन इज 1, 2, 3, 4, विच वन इज मोर एसिडिक? तो ऑब्वियसली आप किसको नाम दोगे? सबसे पहले 2, क्योंकि ऑर्थो पे है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी कम ही करेगा, तो 1 पे कुछ भी नहीं है, तो 2 के बाद मैं 1 का नाम लूँगा। फिर आपका मेटा पोजीशन से प्लस आई इफेक्ट कम जाएगा, तो फिर मैं 3 को दूंगा, और सबसे ज़्यादा ये 4 से जाएगा तो मैं 4 को नाम दूंगा। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, वी कॉल्ड इट। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या करना है कि जो भी ऑर्थो पोजीशन पे अगर दिखा कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं सब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। सपोज करो ये आपका COOH है, दूसरा आपका ये COOH है, पहले COOH लिख लेते हैं, फिर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे ग्रुप
एडजस्ट कर लेते हैं। एंड दिस वन द फोर्थ वन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर सपोज करो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तो ऑब्वियसली इनको अगर एसिडिक ऑर्डर में जो है अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा ऑर्डर होगा? तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा कौन सा बच्चों? सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है, तो OH कौन सा भी दिखाता है, ये +R भी शो करता है और -I भी शो करता है। तो R ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, R ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब, और मेटा पोजीशन पे जो ये इफ़ेक्ट है वो कम होगा, मतलब जो +R वाली जो पोजीशन है वो कम होगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कम कर पाएगा। तो +R शो नहीं होगा तो फिर आई हैव टू राइट डाउन द 3, और फिर 3 के बाद में ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहा है ना, तो डोनेट कर रहा है तो 2 के बाद में मेरा फर्स्ट आना चाहिए ना, 2 के बाद में फर्स्ट आना चाहिए। नहीं, 2 के बाद में 3 आएगा बच्चों। 2 के बाद में 3 क्यों आएगा? क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये केवल -I शो करेगा, R इफेक्ट +R शो नहीं करेगा, और -I शो करेगा तो इसका ज़्यादा होगा। और 3 के बाद बेटा 1 आएगा, और 1 पे कुछ नहीं है, और 4 पे तो ये +R भी शो करेगा। तो +R भी शो करेगा तो ये सबसे वीक एसिड होगा। अगेन इफ सपोज यू माइट हैव सम कन्फ्यूजन, बेटा मेटा पोजीशन पे अगर कोई रेजोनेंस में है तो उसका R इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते, वेदर इट्स +R और -R, उसका I कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये +R -I दोनों दिखाता है OH चैन, तो मेटा पोजीशन पे +R हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो -I कंसीडर करेंगे। तो -I के केस में तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ही करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट। होप स्टूडेंट यू गॉट दिस ऑर्थो इफेक्ट। सेकेंड इम्पोर्टेंट, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता रहता है कि भाई सर इफेक्ट तो नहीं पूछता आपसे, लेकिन इसके क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो देखो कैसे होता है इसका। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हाँ इन दोनों में पूछे वो कि भाई ध्यान से समझना ये है क्या कि ये वाली बॉन्ड लेंथ A या ये वाली बॉन्ड लेंथ B, दोनों में से कौन सी बड़ी है, दोनों में से कौन सी बड़ी बॉन्ड लेंथ है। तो बड़ी बॉन्ड लेंथ को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Br का साइज होता है बड़ा। कैसा होता है बच्चों? बड़ा साइज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मतलब बड़ा साइज होता है। यहाँ पे ये तीनों बेटा अगर रिंग के साथ इनको अगर रेजोनेंस में रहना है तो रिंग के साथ रेजोनेंस में रहने के लिए इनको एक ही प्लेन पे होना पड़ेगा। अब बिकॉज दिस Br आल्सो लाई इन द सेम प्लेन, तो अब इनको अपना प्लेन चेंज करना पड़ेगा। और प्लेन चेंज कैसे करेंगे बच्चे? ये ऐसे मतलब रोटेट कर जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, ये मतलब पेपर के ऊपर आ जाएगा, और ये जो O नेगेटिव है ये पेपर के नीचे चला जाएगा। When it will go मतलब it will become outside the plane, ये जब इस रिंग से आउटसाइड द प्लेन चला जाएगा तो अब नाइट्रोजन किसके साथ? इस रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा, रिंग के साथ नो रेजोनेंस। जब इसके साथ ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा तो ये बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा। हियर ऐसा कोई केस नहीं है कि भाई इनको आउट ऑफ प्लेन जाना पड़े
और आउट ऑफ प्लेन जाना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं जाएंगे और ये इसी प्लेन में रहेंगे, तो इसका जो लोन पेयर होगा वो इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो मैं इसको बॉन्ड लेंथ के पर्सपेक्ट में देख रहे हैं। सिमिलरली अगर पूछे कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो इसका लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस में है, तो दैट वन इज आल्सो लेस बेसिक और ये ज़्यादा बेसिक होगा। ऑब्वियसली अगर कोई आउट ऑफ प्लेन जाएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा बेसिक भी होगा, बिकॉज उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द बल्की ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के केस में ये एक प्लेन में रह सकते हैं और ब्रोमीन के केस में एक प्लेन में नहीं रहेंगे। तो फ्लोरीन का अगर केस हो तो आप बोल देना, तो मतलब आप उस पर मतलब उसको आउट ऑफ प्लेन नहीं पहुँचाना। तो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स ए बल्की ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। सेकंड, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और कौन सा बेसिक ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये बल्की ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं और ये बल्की ग्रुप इसके साथ प्लेन में नहीं रहेंगे, तो ये क्या होगा, बॉन्ड घूम जाएगा, तो इनमें से ये वाला अबव द प्लेन आ जाएगा, अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो ये बिलो द प्लेन जाने पे ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा, रेजोनेंस में नहीं रहेगा तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ये वाली बॉन्ड लेंथ से, और जब ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और इसका बेसिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे HH मतलब नाइट्रोजन के H बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दे हैव नॉट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसका नाम ही है सर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है, रुक रहा है। तो ये बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एसिड इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ ए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं होगी, ये इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और बेसिक करैक्टर भी कम होगा। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल जो सिर इफेक्ट को आपने लर्न करके याद रखना है। दूसरा एक और इफेक्ट होता है स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो अगर उस पर कोई प्रोटोन आ रहा है, मतलब वो बेसिक करैक्टर को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने लिया, तो और ये मेनली एनिलीन के लिए होता है और कुछ अलग से कंपाउंड होते हैं, विजिबल हो जाता है जब आप एक ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो कंपाउंड है, आपसे पूछो कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है इसमें, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, पर एक्चुअल में बच्चों ये ज़्यादा बेसिक होता है। तो आप ये ऐसा भी केस यहाँ पे लर्न करके रख सकते हैं कि भाई ऑर्थो इफेक्ट को यहाँ पे याद रख लो, अगर ऑर्थो इफेक्ट में वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे बेसिसिटी को कम करेगा, ठीक है, यहाँ पे बेसिसिटी को कम करेगा। जैसे होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं इसको बेसिक करैक्टर अगर मेरे को इसका देखना हो, तो बेसिक करैक्टर देखने के लिए क्या होगा, मेरे को इसको एक इसका लोन पेयर ये किसी को डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो बदले में ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे बच्चों। अगर लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज
आ जाएगा, तो देन इट एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन, तो NH पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर CH और H भी है तो ये वाला बल्कि ग्रुप इसको रोकेगा भाई, कि भाई ये प्रोटॉन ना ले, यहाँ पे क्राउड ना बढ़े। अगर यहाँ पे क्राउड बढ़ेगा तो यहाँ पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस में आएगा, तो यहाँ पे क्राउड नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको इनहिबिट करेगा, तो उसको इनहिबिट करेगा, तो इसलिए मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे देयर शुड बी ओनली 2 हाइड्रोजन शुड बी देयर, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये प्रोटॉन को, तो मतलब इसका मतलब ये कम बेसिक होगा और ये जल्दी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो दैट वन विल बी मोर बेसिक। होप यू गॉट दिस इज सिप। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो प्रोटोनेशन है, मतलब कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो रुक गया है। अगर यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप होगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये तुरंत उसके NH2 को रोक देगा। वन मोर एग्जांपल, जैसे अगर ये यहाँ पे प्रोटोनेशन करना चाहे, H डालना चाहे, तो ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी? इसी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन सिप इफेक्ट। तो होप दोनों इफेक्ट आपको समझ आए होंगे, सर एंड सिप। सर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब स्टेरिक इफेक्ट की वजह से वो रेजोनेंस को इनहिबिट करता है, और सिप इफेक्ट मतलब स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से वो प्रोटोनेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम and formation of acid chloride, obviously we have discussed this reaction also कि भाई RCOOH, नहीं ये रिएक्शन नहीं किया, इस पे अगर हम SOCl2 का रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इसका फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर कि भाई RCOOH सबसे पहले NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बोलो? RCONH4 अगर कम टेम्परेचर होता है, और फिर उसको हीट करते हैं तो RCONH2 बन जाता है और प्लस H2O। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। दिस इज एमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर दो मॉलिक्यूल है RCOOH के तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया था कि भाई ऐसे कुछ हो जाएगा, प्लस H2O मतलब एनहाइड्राइड बना देंगे। और यहाँ पे कुछ होता है जैसे P2O5 करके वो ले सकते हैं, अदरवाइज किसी एसिड का प्रेजेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन ये रिएक्शन भी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, RCOONA, और इसमें अगर हम क्या कर दें, सोडा लाइम डाल दें NaOH प्लस CaO, तो होप यू रिमेंबर डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पे हम RH एल्कीन बनाते थे प्लस Na2CO3। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस वी हैव आल्सो डिस्कस कि भाई इसमें क्या होता है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था बच्चों, पहले CH3 COO नेगेटिव बनता था, फिर ये CH3 क्या बनाता था, CH3 ये इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करता था और फ्री रेडिकल प्लस CO2 बनाता था, और ये फिर दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, और ये C2H6 बनता था।
तो इसको मैंने एक स्टेप में दिखाया, आप इसको 2 स्टेप में भी दिखा सकते हैं। दैट विल गेट द इलेक्ट्रॉन और फिर ये कन्वर्ट हो, इट विल डोनेट माइनस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो CH3COO फ्री रेडिकल, फिर ये फ्री रेडिकल से सीधा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो 2 मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल आपस में मिलके एथेन। इसका मैकेनिज्म हमने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था और ये ही मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट, समवन आस्क इन द क्लासरूम आल्सो व्हाट इज HVZ रिएक्शन। हेलेंस्की, वोल्हार्ट, जेलेंस्की रिएक्शन। मैंने आई टोल्ड यू कि भाई अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर हम हेलोजिनेशन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और हिट करते हैं, तो मैंने बोला था कि भाई CH3CO जो अल्फ़ा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगी वो रिमूव हो जाएगी, CH2Cl और COOH प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस HCl। दिस इज HVZ रिएक्शन। और अगर ज़्यादा प्रेजेंस लेंगे, लाइट की प्रेजेंस ज़्यादा होगी, Cl2 एक्सेस होगी, तो सारे के सारे अल्फ़ा जो हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो बच्चों क्या होगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इनके साथ ना CO2 गैस ये बाहर निकाल ही देते हैं हीट करने पे, तो मतलब इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, तो ये एक इनका टेस्ट हो जाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिनॉल रिएक्ट नहीं करते। दूसरा टेस्ट हो सकता है FeCl3 टेस्ट। तो FeCl3 के साथ जो RCOOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करते हैं, तो ये येलो ब्राउन PPT बनाते हैं, येलो ब्राउन PPT। और येलो ब्राउन PPT बनता किसका है? CH3COO का होल थ्राइस Fe, इसका हम येलो ब्राउन PPT बनता है। और जो हमारा फिनोल होता था, फिनोल के केस में आपको याद होगा तो FeCl3 के केस में ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता था, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। तो these are the tests that distinguish carboxylic acid and phenol। और this is carboxylic acid and phenol। तो ये इनके टेस्ट भी हो गए हैं बच्चों। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉल मी। होप यू एंजॉय दिस स्मॉल स्लाइड। थैंक यू एवरीवन बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वी विल डिस्कस द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।